Yes, boys. Already we have done with VSAQs. Now I'll be taking the class for SAQs. SAQs 40 marks. You will be given 12 questions. Out of 12, we have to write any 8. Each question carries 5 marks. LAQs 5 are given. Out of this, we have to write any 3. Each carries 10 marks, 30 marks. VSAQs again 15 questions. Each 2 marks, 30 marks. So that 30, 30, 60. Only SAQs are of 40 marks. If you concentrate more, you will get good marks in this session also. And lesson-wise important questions I have written on the board. We'll start with lesson 1. In lesson number 1, the most important topic is relationship of political science with history and economics. Okay, you have 8, 9 points are there. Minimum 5 points you have to be thorough in this. Okay, minimum 5. More than enough because this is the 5 marks answer. You know the definition of political science. What is political science? When you know the definition of political science, that relationship of political science with history and economics. History means what happened in the past when political science was introduced and how it had been growing the countries, economy of the countries. It is about that. So that is the difference. It is not a difference, it is relationship. दोनों के साथ रिलेशनशिप पॉलिटिकल साइंस का कैसा है, हिस्ट्री में भी कैसा था, अब कैसा है और इकोनॉमिकली कैसा है. ठीक है. लेसन नंबर 2, these are the very important questions. 4 kinds of sovereignty. You know sovereignty is one of the type of element of the state. In this you have 4 kinds of sovereignty. De jure, de facto, real and nominal. These 4 are important because if you prepare thoroughly real, you can write for de jure. If you thoroughly prepare nominal, you can write for de facto or vice versa. Okay, so prepare this answer. Then in this lesson you have differences between state and society, state and government. State के side headings 5 अच्छे से याद कर लो. ठीक है. उसके बाद सोसाइटी के अच्छे से याद कर लीजिए. If at all he gives you instead of state and government society, he gives you state and government, it will be easy for you to attempt the answer. तो ये वाला पहले आप क्या करना है, thoroughly you have to be ready with these points. Okay, दोनों के लिए भी ये वाले कॉमन रहेगा. 5 points. Then define nationality and its essential elements. What is nationality? And you have 8 essential elements. You prepare any 5. Purity of race, color, religion, common language, geographical area. These are the 5 points. If you be thorough in this, you can easily write it. Nationality के बारे में लिखना है. Nationality में क्या क्या चीजें इंपॉर्टेंट है. Religion को इंपॉर्टेंट नहीं देते, लैंग्वेज कॉमन रहती, हाँ कलर को इंपॉर्टेंट नहीं देते, उसके बारे में आपको लिखना है. Be thorough with the side headings. पहले इंट्रोडक्शन पढ़िए, उसके बाद किसी एक फिलोसोफर का डेफिनेशन पढ़िए, साइड हेडिंग्स अच्छे से पढ़िए, ब्लैक पेन से साइड हेडिंग्स लिखते जाइए, उसके बाद आंसर को एलैबोरेट करिए. ओके. देन यू हैव एनी काइंड 4 काइंड्स ऑफ लॉ. कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, नेशनल लॉ है ना. 4 काइंड्स यू हैव टू राइट. देन नेक्स्ट लेसन लिबर्टी. द मीनिंग ऑफ लिबर्टी इज फ्रीडम. सो डिफाइन लिबर्टी एंड राइट एनी 3 टाइप्स ऑफ लिबर्टी. नेचुरल लिबर्टी, yes, civil liberty, yes, very good. Then explain any 3 kinds of equality. Write the definition of equality and write about the 3 kinds of equality. What are that? Again you have 3 types of equality means civil equality, political equality, economic equality. Explain the concept of justice. Write the definition and what justice is mean. In this also you have to write any 4 points. Okay, then coming down to the 5th, explain the concept of satyagraha. You are thorough with the answer of basic principles of Gandhism, right? Gandhism का आंसर अच्छे से थरो कर लिए तो गांधी जी क्या क्या अपने को जो है मेंशन करे उसके बारे में इसमें लिखना है. सत्याग्रह यानी कि सत्य पर सही रास्ते पे चलने वाला, क्या क्या चीजों को फॉलो करना है. राइट, पॉइंट वाइज इट हैज गिवन. यू नीड नॉट राइट द साइड हेडिंग्स, यू नीड नॉट एलैबोरेट इट. पूरे आंसर को पॉइंट वाइज दिया हुआ है, बहुत सिंपल और इजी आंसर है, तो ये अच्छे से पढ़ लीजिए. उसके बाद फीचर्स ऑफ राइट्स, राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन में व्हाट आर द फीचर्स ऑफ राइट्स, एंड देन टाइप्स ऑफ ड्यूटीज. You have 2 types. Yes. Okay, very good. All are prepared. That means types of duties. Then qualities of good citizen. In lesson number 7, these are the 2 important answers which you get in 2 marks, 5 marks. One is the quality of a good citizen, and another one is how the citizenship is lost. He can ask anyone out of this. He will not ask you both the questions. Anyone out of this he will ask you, but you have to be thorough with this 2. इसमें भी आपको क्या करना है, साइड हेडिंग्स अच्छे से याद कर लेना है. क्वालिटी ऑफ गुड सिटीजन की क्या है और हाउ द सिटीजनशिप इज लॉस्ट. सिंपल है. अगर आप जस्ट वाले जसंगिनी अच्छे से पढ़ेंगे तो आप सिटीजनशिप इज लॉस्ट का भी आंसर उसको कहीं ना कहीं रिलेट कर सकते है. नहीं है जस्ट वाले जसंगिनी ब्लड रिलेशनशिप और प्लेस ऑफ बर्थ के हिसाब से सिटीजनशिप आ रही, तो उस हिसाब से आप इसमें उसको रिलेट कर सकते. देन इन दिस डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइसेस you have 2, direct democracy and indirect democracy, right? In already VSAQs we have discussed about indirect democracy and different devices like recall, referendum, plebiscite, initiative. These are the 4 direct democratic devices. ये वाला आंसर आपको ने SAQ में पूछा, तो आप ये वाले आंसर को ऐसा प्रिपेयर होइए कि अगर किसी एक चीज को 2 मार्क्स में पूछा तो भी आप लिख सकते. So if I want make it more easier for you, आप लोग क्या करो, VSAQs के ये 4 पढ़ लो. रिकॉल, रिफरेंडम, इनिशिएटिव और प्लेबिसाइट. उसके साथ इंट्रोडक्शन का जो है डायरेक्ट डेमोक्रेटिक डिवाइसेस का आंसर
2 लाइन है इंट्रोडक्शन के, वो पढ़ लो। तो ये आंसर को एलॉबरेट करके लिखना है बोले तो ये VSQ चारों पढ़ लिए, वो यहाँ पे लिख दे सकते हैं आप, ठीक है। अगर VSQ में कोई 2 तो आते ही आते, इनिशिएटिव और रिकॉल तो आता ही आता कैसा भी, तो आप उस हिसाब से कर सकते हो। एक आंसर पढ़े तो आपको क्या है 2 जगह पे भी लिखना है। तो ये 5 मार्क्स और ये 2 मार्क्स कितने हुए 7 मार्क्स। वन आंसर इज कैरिंग 7 मार्क्स फॉर यू इन SAQ। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म। नाउ रिमेंबर सेक्युलरिज्म से रिलेटेड कुछ भी क्वेश्चन आने दो, कॉन्सेप्ट, फीचर्स, व्हाटएवर द क्वेश्चन इज, यू विल राइट ओनली दिस आंसर। 4 पॉइंट्स अच्छे से पढ़ लीजिए फीचर्स ऑफ सेक्युलरिज्म के। मालूम है आंसर सेक्युलरिज्म किसको बोलते हैं? Any country where they don't give importance to religion, that is called as a secular country. India is a secular state, yes. Though we follow so many religions, we don't give importance to religion. All religions are treated equally, right? Humanity is given the upper hand compared to religion, right? So India is a secular state. इसके features है secularism के, वो पढ़िए। Again in constitution also you learn only features of constitution. Extra अगर कोई आंसर पढ़ना है features of constitution के बाद, then you will be going for the differences between written and unwritten constitution. Only 5. रिटर्न एंड अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन के भी 5 डिफरेंसेस, जहां भी डिफरेंसेस आ रहे रिटर्न अनरिटन है ना, तो स्टेट एंड सोसाइटी, स्टेट एंड गवर्नमेंट, 5 भी पढ़ना है। ऐसे बड़े बड़े आंसर जिसमें ज्यादा पॉइंट्स है, जैसा कि कॉन्सेप्ट ऑफ जस्टिस है, 5 पॉइंट्स ही पढ़ना है। सत्याग्रह का लेकिन पूरा पढ़ना है। फिर फीचर्स ऑफ राइट्स भी एनी 5 बिकॉज दिस इज द 5 मार्क्स आंसर, बट whichever आंसर इज हैविंग द साइड हेडिंग्स highlight it with black pen and then write the answer with blue pen. तो अच्छे से नीट प्रेजेंटेशन रहता आंसर का। Then you come down to unitary government, federal government, types of government, presidential form of government and parliamentary form of government. आपको अगर उन्हें differences between unitary government और फेडरल गवर्नमेंट के बारे में पूछा या नहीं, तो डिफरेंसेस बिटवीन पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट या प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट के बारे में पूछा या नहीं, राइट अबाउट यूनिटरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा खाली, या राइट अबाउट प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट पूछा। अगर डिफरेंसेस पूछा तो कौन सा भी एक ही डिफरेंस पढ़ के रहो आप, या तो ये 2 का पढ़ लो या तो ये 2 का पढ़ लो, कौन सा भी पूछना तो आपको वही आंसर लिखना है। सपोज आप यूनिटरी एंड फेडरल के डिफरेंसेस पढ़ लिए, ठीक है, अगर उन्हें पार्लियामेंट्री और प्रेसिडेंशियल पूछा, यू हैव टू राइट दिस डिफरेंसेस ओनली हेडिंग विल बी चेंज्ड। Suppose he is asking you unitary federal, but already have learned it. अगर write about parliamentary form of government पूछा, then you write the one unitary form, presidential form, federal, जो भी है। तो आप ये दोनों में से कोई एक ही आंसर पढ़ो, कौन सा भी डिफरेंस पूछने दो, आपको वही लिखना है, that too 5 points. These are 18 questions. Out of this, most important, I will take you prepare that 12 thoroughly. From that 12, I know already आप लोग 8 तो prepare होके होंगे शायद, okay? So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, इसमें से कोई एक पढ़ो, 9, 10, 11, कितने लिखना है 8, तो कितने टिक करना है एटलीस्ट 12। आगे ये वाले क्वेश्चंस अच्छे से पढ़ लीजिए, इसमें से आते आप 8 अच्छे से लिखो। इफ एट ऑल वी हैव मिस्ड एनी क्वेश्चन विच इज नॉट देयर इन दिस, हम पूरे लेसन 1 से लेसन 11, 12 तक कवर कर लिए क्वेश्चंस। इफ एट ऑल ऐसा दिखा कि कुछ भी इंपॉर्टेंट हम इसमें से मिस करें, तो अगर वो लेसन का ही दूसरा क्वेश्चन है, फॉर एग्जांपल काइंड्स ऑफ इक्वालिटी के बजाय अगर इक्वालिटी से रिलेटेड कुछ दूसरा पूछा, तो आप क्या करते, इक्वालिटी का लिखना। एंड आई वांटेड टू मेक वन थिंग वेरी क्लियर बॉयज, आई हैव सीन दैट समबडी हैज एक्सप्लेन्ड, बट आई डोंट वांट टू टेक दैट नेम्स। क्लियरली इक्वालिटी एक अलग चीज है, राइट्स एक अलग चीज है, लिबर्टी एक अलग चीज है, सुन रहे? तो इक्वालिटी एक टाइप्स ऑफ इक्वालिटी पढ़ लिए, तो टाइप्स ऑफ लिबर्टी, टाइप्स ऑफ राइट्स भी लिख दे सकते, ऐसा मत सोचो, समझ गए? इक्वालिटी है तो पूरा इक्वालिटी के बारे में पढ़ना है, तो इक्वालिटी से रिलेटेड अगर कुछ भी क्वेश्चन पूछा तो आप लिख सकते, लेकिन लिबर्टी में लेके आप इक्वालिटी को नहीं मिला सकते। आई बात समझ में? उस हिसाब से प्रिपेयर हो ये शॉर्ट क्वेश्चंस, और बहुत इजी रहते, अच्छे से पढ़ो, अच्छे से लिखो, यू विल डेफिनेटली गेट द मार्क्स। एनी डाउट्स?